R.S. Maurya. Guys, we'll today see how we can write a letter. Letter writing is a part of life, a part of activities, life activities. Sometimes it is a daily activities, but it is occasional also. Sometimes, so every educated man is supposed to write a letter. It is mandatory for a cultured society. It is mandatory. We should know how to write letter. तो होता क्या है लेटर में, ये हम देखेंगे. लेटर में हम अपनी बात को रखते हैं. लेटर होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेशन है. इट इज कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो we send a message, a piece of message from one point to another point. ये चीज़ है. तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि हम अपनी भावनाओं को अपने लेटर में व्यक्त करते हुए वहाँ तक पहुँचाते हैं और उसको जाहिर होने देते हैं कि ये हमारा लेटर पहुँच गया, हमारा काम ख़त्म हो गया. दिस इज़ वेल कम्युनिकेटेड way of saying or describing something when there was no computer, no telemachine. Yes, I remember we used to write letter. हम लोग लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे, and there our feelings were counted, our writings were counted, that it should be in a good handwriting, that feeling should be nice. And then another thing was that let the person whom it is addressed should acknowledge that you have given some message through letter writing. So letter writing is a feeling of absence, feeling of presence in the absence. Presence in the absence. If you write someone a letter, then one reads, and not only he reads your letter, but he also reads the way you have written, words you have employed, or the feelings you have flown through the words. All these things matter. Punctuation, comma, where our breath is stopped, and then semicolon, and then comma and full stop. Everything is something very nice experience when you used to write. Nowadays, guys, things have changed. The world has changed. We are not so much sensitive about writing a letter. We just get a letter, reply, and then we again receive. So this is a matter of fact life. But the time was that letter writing was given credit. And history also says we have got many letters in India also. You see, Pandit Jawaharlal Nehru used to write a letter to his daughter, Srimati Indira Gandhi. Then Indu, her name was Indu, तो प्रियदर्शी नाम था. तो he used to write a letter, and he was in Naini jail. He used to write daily one letter to his daughter, and she could read well, and she could understand also, and she could acknowledge and got lesson from the letters by Pandit Jawaharlal Nehru, who intended to write and to give some lesson plan for her. So Pandit Nehru was a very good father, who has a good teacher also, who could write, and not only write and how are you, but could tell something, how the world was made, how the पहले कैसे था,
धीरे धीरे गर्म होने लगा, फिर ठंडी होने लगी, फिर कैसे आदमी बचते गए। देन ऑल गिवन द पाषाण युग में कैसे होता था, फिर इसके मेटल एज में क्या हुआ, ब्रॉन्ज एज में क्या हुआ, ये सब देते। फिर कैसे people of different countries are living. All these things is a matter of great pride to India, and this letter was, was given a prize uh, in children's literature. It was got prize. This letter written to a daughter by a father was given prestigious pride. I don't know. I don't know, but I somewhere read that it was given a prize in children's literature. Yeah. So that is one thing. And when adult literature also, you find John Keats, a thing of beauty is joy forever. Keats wrote so many letters, so many love letters written by him to his beloved, and it is already there preserved in British Museum. So later writing has been a history, and we enjoyed later writing, and because there was no way out to address someone without writing. So it was very strong media through which we convey our feeling and desire and emotions and grudges and which is support, so many things. Okay, then we have come to the computer age where we can type something, and then तो अब हम देखते हैं when we come to writing, let us see what is letter writing. So letter writing is a piece of writing which is to be sent from one end to another end, and vice versa. तो लिखते कैसे हैं आप जानिए। दो तरह के लेटर होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव लेटर होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव लेटर होते हैं। सब्जेक्टिव लेटर को पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेटर्स को ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ऑफिशियल लेटर कहते हैं। तो हम जो है किस चीज़ को, जैसे अब जैसे पर्सनल लेटर्स हुआ, जैसे पर्सनल लेटर्स में यूजली हम तब लिखते हैं जब वी आर अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स, आवर रिलेटिव्स, आवर brothers and sisters, we write to them. Friends, so friends or kiss and kin, siblings, इसको बात है siblings, friend, parents, पेरेंट्स में बहुत सारे, मदर, फादर, फिर अंकल, वॉट एवर इज देयर, दिस इज पर्सनल. इन पर्सनल लेटर्स वी यूज टू pour our feelings, the way we like or dislike the person, or we can also express our feelings about this world, feeling about the neighborhood, feeling about the companions, feeling about the anything that we can reflect. So words are used to capture the feelings and emotions, and we let them pass through letters. तो one thing is there that इसमें क्या कि ये परिवार के लोगों के का लिखा जाता फीलिंग्स, जैसे फीलिंग्स ही मेन चीज़ है. आई एम द ऑफिसर ऑल्सो, आई एम द फैमिली मेम्बर ऑल्सो. व्हेन आई एम इन द ऑफिस वी डू नॉट लिव लाइक ए फैमिली. वी हैव सर्टेन वर्क्स टू डू, वी हैड सर्टेन rules and regulation to visit office and to work in office. तो
we cannot live in that way. So this kind of letter, this kind of feelings, which comes by closeness and togetherness, is this. This is togetherness. This is togetherness, family and friends. Family and friends. So we are free to write letter, and in what way we want to write letter, we choose our way to write, and then get answer also. So एक तो ये हुआ आप फैमिली लेटर. फैमिली में from the right beginning you had a letter to father, letter to mother, brothers and uncle, so many things. So it comes in personal letters. Or official letter is something different. Official letter is objective letter, where you have not to express the feelings, but you have to write the matter of facts, what happened to you, without any decoration or ornamental language. You have to write this objective type of letter. ये आप अपने बॉस को लिख सकते हो, ऑफिस में बॉस, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर में लिखिए. और फिर वो आप जो है जिस क्षेत्र में हैं, ये इसका बड़ा लंबा क्षेत्र है. इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, स्कूल है, तो उसमें प्रिंसिपल होगा और टीचर्स होंगे, फिर स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके बीच लिखा जाता है. स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच लिखा जाता है. ठीक. अगर ऑफिस में है तो आप अपने बॉस के बीच में लिख रहे हैं, सीनियर के बीच में लिख रहे हैं, जूनियर के बीच में लिख रहे हैं. तो इस तरह के लेटर्स जो है लिखे जाते हैं. और कैसे लिखे जाते हैं, लिखे जाने का उद्देश्य ये है कि जो हम चाहते हैं, वॉट एवर आई वॉन्ट टू कन्वे शुड बी कन्वेड नाइसली, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी कंट्राडिक्शन. तो लेटर शुड बी रिटन इन दैट वे. एंड अच्छा चल के देखते हैं. पहले हम फैमिली लेटर्स में कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि उसको आप अवॉइड कीजिए. लिखते हुए कैसे लिखते हैं फैमिली लेटर्स, और इसके बाद ऑफिशियल लेटर्स बताएंगे. और कुछ लेटर्स तो जानना बहुत ज़रूरी है. आई हैव बीन टीचिंग I'm not satisfied with the way students write application to in college or schools. That's very boring. Although situation have been changed, they have been helped by the what we call the tools. वो दो लाइन लिखते हैं, स्पेलिंग में उनको हेल्प किया जाता है, सेंटेंस में कंप्यूटर हेल्प कर देता है, मोबाइल पर सब चीज़ तो ये है. लेकिन फिर भी द वे दे राइट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज वी यूज टू राइट लेटर दोज डेज. हाथ से लिखना और अपनी फीलिंग्स को ये करना, लेट अस सी, वो दूसरी चीज़ है. आज भी अच्छा लेटर लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. जैसे हम यूजुअली जब पर्सनल लेटर लिखते हैं, तो या तो हम कोई चीज़ जो है वो किसी फीलिंग्स को, मेजर जो फीलिंग्स है, मेजर जो कंसर्न है, उसको बताना चाहते हैं. मेजर कंसर्न है उसको हम बताना चाहते हैं. जो मेजर कंसर्न होता है उससे और कुछ जो है माइनर कंसर्न होते हैं,
मेजर कंसर्न और माइनर कंसर्न में आप अंतर समझिए। मेजर कंसर्न ये है कि यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल एंड देन योर बर्थडे इज कमिंग एंड you want that your father should send some extra money to you because you have to celebrate your birthday and your friends are there. So your main concern is major concern is to get money, to ask for money. ये चीज जो है ये आस्क फॉर। और माइनर कंसर्न क्या है? माइनर कंसर्न में you may ask several things. You will like to know about your other family members. अगर आपका भाई बहन पढ़ रहा है उसके पढ़ाई के बारे में, ब्रदर्स, ब्रोस एंड सिस्ट, ये इनके बारे में जानना चाहते हैं। आस पड़ोस के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। लेकिन आपका जो मेजर कंसर्न है वो मनी है। तो मेजर कंसर्न को यू हैव टू प्रोड्यूस इन ए सच वे दैट इट शुड लुक लाइक दैट यू रियली नीड money and your father may be pleased to send you money, that you are not exploiting your father but you are just needing it. मनी आपको चाहिए तो आपको इसके लिए एक अच्छा सा मिलना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। उसके एड्रेस में क्या लिखते हैं? जैसे लिखते हैं डियर फादर, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं आप कैसे लिखोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। आप डियर फादर की जगह डियर पापा लिख सकते हो। तो डियर पापा जो है ये थोड़ा आपके क्लोजनेस को बताता है। डियर पापा ये आपके क्लोजनेस को बताता है। और आप यहाँ से शुरू कर सकते हो और इसके बाद जो 2-3 लाइन लिखी जाती है वो क्या लिखते हो? 2-3 लाइन you write anything that is personal matter what you write, but it is written that I am hell and hurting, my studies, I am hell and hurting. नंबर 1। दूसरा चीज आप क्या लिखोगे कि योर स्टडीज कैन माई स्टडीज स्मूथली गोज ऑन, नहीं स्मूथली ये आपकी पढ़ाई चल रही है, आप आराम से हैं और फिर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्या क्या कहेंगे? आपको ये कहना है कि आई एम वेरी सॉरी दैट आई विल नॉट बी एट होम ऑन माई बर्थडे या वट एवर बर्थडे, 14th बर्थडे, एंड आई विल बी मिसिंग Papa and Mummy both, you and Mummy both, and my brothers also missing both, because I cannot come to my house for this celebration of this thing, because there is strict rule for that we should not have to leave hostel.
examination is going on. Which examination? मान लीजिए suppose 6 monthly examination is at hand, so I cannot come to house and for this purpose celebrating birthday. But my friends are there. They are very happy to know that my birthday is there. So I want to let them know that that we celebrate birthday, and for that I need some extra money. So I hope you understand, and you also tell me how should I celebrate birthday, and what amount I need is also you can also explain the amount, 5,000, 4,000, whatever is there. You write the amount and you request him to send. So this is the way you can write. Is the major concern or minor concern. बहुत तरह के लेटर्स होते हैं. लेटर को जो है कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए. जब आप पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो पर्सनल लेटर शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट कंट्राडिक्ट योरसेल्फ. जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो हॉस्टल में रह रहे हो तो आप जो है आपको एक्सीडेंट हो गया और हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया, तो आप जस्ट यू राइट ए लेटर टू योर फादर that father, I got accident and but I went to hospital and bandage, I got bandage in my right hand. तो आप उसको लिख कर भेज दिए. तो if you are not written it step by step, तो your father may be very much upset. Parents they have unconditional love for you. अगर आपको लग गया है, घाव लग गया है, तो आपको उसको लिखना चाहिए क्या घाव लगा. जैसे आप फर्ज कर लीजिए कि आप लिख देंगे हमको घाव लग गया, हाथ में घाव लग गया, बैंडेज पड़ा और मैं अस्पताल में था और फिर सब कुछ ठीक ठाक है. बाद में लिख दिए सब कुछ ठीक ठाक है, आते समय जो है हमको ये चीज़ लेते आइएगा, कुछ भी लिख दिए. योर फादर गॉट द लेटर एंड यू आर सरप्राइज. अरे हमारे बेटे को क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू हिम, why was he in hospital, was the case so serious that he was in hospital. तो समझ में नहीं आता. माँ को बतला, माँ भी घबरा गई क्या हो गया, और वो तुरंत वहाँ से जो है हॉस्टल चली गई. वो काफ़ी दूर पड़ता है, फिर भी वो 2 घंटे में हॉस्टल पहुँची और फिर देखती है कि आप जो है बेड पर हंस रहे हैं, आपको थोड़ा सा जो है हाथ छिला है, आप हंस रहे हैं. तो ये अच्छी चीज़ नहीं है. यू राइट दैट दिस वे आई गॉट एक्सीडेंट एंड एट वंस आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल एंड दे गिव मी फर्स्ट एड. आफ्टर दैट इट इज़ ऑल राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. आई केम बैक एट हॉस्टल, आई एम हेल एंड हर्ट. सो नो नीड टू बी डिस्टर्ब. तो ऐसे करने से अब जो है आप जो इनकम्प्लीट लिखते हैं, कंट्राडिक्टरी चीज़ लिखते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है. तो कंट्राडिक्टरी चीज़ नहीं लिखें, ठीक. और यू डोंट राइट एनीथिंग व्हेन यू आर इन ए टेंस, इन ए वेरी हैप्पी मूड, फुल ऑफ इमोशन. डोंट राइट if you are angry or full of emotion, इसका मतलब होगा full of emotion. आप कभी कभी खुशी में ही बहुत गलत चीज़ लिख जाते हो, और कभी कभी जब आप एंग्री होते हो तो लिखते ही हो, लेकिन खुशी में ही बहुत सारी चीज़ें वो गलत लिख जाते हो, एग्जैगरेट कर जाते हो, और विच डजंट लुक गुड. तो कभी भी आपको व्हेन यू आर इन नॉर्मल मूड यू राइट.
You can write about your study, you can write about your friends, you can write about your teachers, how teachers teach you, and how you feel the life of hostel, and how are you friendly to your colleagues, classmates. So these are the things that you have to take into. Language. What kind of language you should use? So the language you should use in personal letter is very simple, natural, and direct. When you are writing to your parents, or your elder brothers, or your members of the family, you should always show that you are the same person as you were when you are not at a hostel. So you should show that you are still a child. You are still a child to them, and still they are your parents. Still they hold influence over you, and still you obey them. तो आपको उसी ढंग से लिखना पड़ेगा, और लास्ट में जो है ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े हो गए हो तो आप जो है कुछ ऐसे वर्ड्स लिखो जो पेरेंट्स को लगे कि नहीं, ये जो है ये अब तो हाथ से चला गया। तो ऐसा नहीं, आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को उसी ढंग से रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ, और जैसे आप हैं उसी के साथ लिखना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि उसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए जिसमें आप उनसे बात करते हैं। कभी हो सकता है जैसे खड़ी हिंदी लिख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप खड़ी हिंदी ही लिखें, आप उनसे जिसमें बात करना चाह रहे हैं, जो टर्म आप यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंस इट इज़ ए पर्सनल लेटर, no one is going to read it, because it is a private and personal, no one can read it. Only your parents will read it, and they will know about it. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और गलती स्पेलिंग भी अंग्रेजी में नहीं कीजिए। जैसे जो आप गलती करते हो वो गलती मुझे पता है, क्या क्या हम इतने दिन से मैं पढ़ाया, तो आप जो गलती लिखते हो स्पेलिंग की, माय डियर फ्रेंड्स, अब जो यहाँ आपने जो गलती किया उस गलती के लिए आप क्षम्य नहीं हैं। आप क्या लिखना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स का मतलब, डियर का मतलब होता है हिरन। अगर आप थोड़ा सा स्पेलिंग आप गलत कर दिए तो इसका क्या मतलब होता है आप खुद ही समझ सकते हो। तो इस तरह की गलती नहीं की, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स इसको। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबा सेंटेंस लिखे, आप शॉर्ट सेंटेंस लिखें, शॉर्ट सेंटेंस लिखें। Short sentences are always preferred. Sentences are preferred. डेट जरूर लिखें, डेट जो है जरूर लिखें। डेट से पता चलता है कि आपने किस तारीख में लिखा, और जब आप डेट, और अगर आप टाइम भी लिखते हैं, समय भी लिखते हैं तो अभी बहुत अच्छा है। ये डेट और टाइम लिखें। वी कैन डिसाइड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम डेट एंड टाइम, कि उस समय आप लिखे तो आपकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, और जिस समय आप लिखे तो उसमें कहाँ रहे होंगे, तो उस समय कैसी स्थिति में आप लिख रहे हो, दैट इज नोन थ्रू द डेट एंड टाइम। So date and time you should
डोंट मिस डे टाइम। टाइम लिखने का है, आप लिख सकते हो। उसका लिखने का कई तरीका है, बताएंगे हम इसमें बताएंगे ऑफिशियल लेटर में कि अच्छा ये तो ये लिखने से आता है लेटर, तो बताने के। अब ऑफिशियल लेटर में देखिए, ऑफिशियल लेटर में ये लेंथ में छोटा होगा, शॉर्ट, ये लेंथ में छोटा होता है, लेंथ होना भी चाहिए। आप पिताजी को लिख रहे हो, आप काफ़ी लिख सकते हो, माँ को लिख रहे हो लिख सकते हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो। लेकिन ऑफिशियल लेटर में जब आप लिख रहे हो, किसको, प्रिंसिपल को लिख रहे हो और एडमिशन के लिए लिख रहे हो, या सब्जेक्ट को चेंज करना है, आप लिख रहे हो कि हम पॉलिटिकल साइंस ले लिए, हमको समझ में नहीं आता, या हम इकोनॉमिक्स ले लिए, हमको समझ में नहीं आता, आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस, आई हैव अटेंडेड 3-4 lectures so far, but I couldn't understand the head, neither head nor tail of it, so I want to change this subject, and I instead of that subject, this subject I am going to take। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। कॉलेज में जो लेटर्स लिखे जाते हैं, उसमें जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो मेन चीज़, बहुत सारा चीज़ है, उसको हम उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कॉलेज में लिखे जाने वाले लेटर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और दूसरी चीज़ की नौकरी में अप्लाई करना और उस पर फोकस करेंगे। तो ये दो वीडियो और बनेगा, जिसमें हम बताएंगे कि कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आज आपको बता, जैसे आप कॉलेज में जो प्रॉब्लम होता है वो नेम में आज कंप्यूटर्स में एरर्स आ रहे हैं, गलती हो रहा है, तो आप कैसे करोगे। दूसरी चीज़ है टोटलिंग में गलती हो सकती है। तीसरी चीज़ है कि आपको तुरंत कोई चीज़ ज़रूरत है, टीसी की ज़रूरत है, एब्सेंट रहे हैं, एब्सेंट लीव है, इसकी ज़रूरत होती है कि आप एब्सेंट रहे हैं, आप नहीं आ सकते। फिर और आप कहीं जाना है, एनसीसी में भाग लेना चाहते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपके जो डिमांड्स हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपको अधिकतर एप्लीकेशन लिखना आप स्टूडेंट्स यूनियन को लिखना चाह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ को एक 4-5-6 लेटर है, आप इसको अच्छी तरह से जानिए। दूसरी चीज़ क्या जानिए, आप एप्लीकेशन कैसे दिया जाता है, आप हेडमास्टर को कैसे एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, या किसी ऑफिस में कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। बिजली विभाग में है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, उसमें आप बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए तो कैसे लिखोगे। फिर बहुत से चीज़ हैं जो, तो उसको आपको लिखना चाहिए, और अच्छी तरह से लिखना चाहिए, और फ्लॉलेस, बिना मिस्टेक के लिखना चाहिए। आज बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन बीए में पढ़ने वाले बच्चे को अगर कह दिया जाए कि वो एप्लीकेशन लिखिए और वो आप छुट्टी मांगिए 4 दिन के लिए कहीं जाना है, तो वो अच्छी नहीं लिख पा रहे हैं। डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देना है, एसडीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन देना है, थाना में जो है आपको लिखना है, तो ये सब चीज़ आपको लिखना चाहिए। यू आर ग्रेजुएट एंड यू आर सपोज टू राइट ए गुड लेटर। और जब आपके लेटर, आपको जब अच्छा लेटर लिखना आ जाएगा तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। हमने देखा है बहुत सारे जगह पर जहाँ हमने लेटर लिखा है उन लोगों के, तो देखते ही उनको पता लग जाता है ये आदमी किस लेवल का है, या उसके जो आप वर्ड यूज़ करते हो, जो आप सेंटेंस यूज़ करते हो, और जिस ढंग से आप अपनी बात को रखते हो, ऑल दिस शोज योर मेरिट। तो लेटर से
आपकी मेरिट की जानकारी होती है। इसलिए आप कहीं एप्लीकेशन दे रहे हो एसडीओ के यहाँ या ब्लॉक प्रमुख को आप एप्लीकेशन दे रहे हो और आपको चाहिए खाद चाहिए या फर्टिलाइज़र चाहिए, आप लिख नहीं पा रहे हो, आपको क्या, तो आप समझो कि बड़ा ख़राब इम्प्रेशन होता है। या डीएम को आपने एप्लीकेशन लिखना है गांव की तरफ से, तो आप लिखिए, पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छी तरह से लिखिए, सो दैट ही मे नो दैट यू आर ऑल्सो ग्रेजुएट। ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो लेटर राइटिंग आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न, एंड दे शुड, because we have always to write letter, although your letters have been supported by your tools, apps, you have not to make mistake of spelling, because automatic correction machine is there, so but you don't have even that norms how to write. तो ये इस चीज़ को आप समझिए, और फिर हम लोग देखेंगे ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है। एक लेटर और लिखा जाता है जो उसको कहते हैं, ना तो ऑफिशियल होता है और ना जो वो क्या बोलते हैं कि ना ऑफिशियल होता है ना पर्सनल होता है। ये एडिटर्स को लिखना होता है, उनका एडिटर, पढ़े लिखे लोग हो, आपके व्हाट इज गोइंग अराउंड यू पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, यू हैव टू राइट। किसी मेले के बारे में आपको लिखना है, उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपने क्या किया, आपके गांव वाले क्या समझते हैं, शिक्षा पर लिखना है, एजुकेशन लिखना है कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, कि सबको अलग अलग तरह से पढ़ाया जा रहा है, एक ही क्लास को 10 लेवल में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ का बच्चा कुछ सीखता है, वहाँ का बच्चा कुछ सीखता है, एक ही क्लास का बच्चा 10 तरह की पढ़ाई पढ़ रही है। हिंदुस्तान बहुत गजब का देश है, एक को कुछ पता नहीं है, दूसरे को कुछ पता, तो जो इस तरह से जो लेवल है, फ्लक्चुएशन ऑफ लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये सब बहुत आप सब पर लिख सकते हैं। इफ़ यू फील दैट it should be corrected, you write to the editor, अब न्यूज़पेपर चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, जो भी है, इंग्लिश, आप उसको लिख सकते हो। तो लिखने की आदत डालिए, तो ये सब लेटर राइटिंग हुआ, ये सब पर आता है। कोई भी कंपटीशन है, अगर रिटेन की बात है तो आपको समझिए कि ये अगर रिटेन परीक्षा हो रही है, अंग्रेजी की परीक्षा हो रही है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप लेटर तो जरूर आना ही आना है, और लेटर आप अच्छा लिख लिए तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी मिलता है इसमें, और ये उसमें तो सफल होंगे ही, ज़िंदगी में भी सफल होंगे, बिकॉज एवरी टाइम एवरी एजुकेटेड पर्सन हैज़ टू राइट टू सम ऑफिस और अदर, तो ये तो ज़रूरी चीज़ है। तो आज इसको बंद करते हैं, आई कॉल इट डे, एंड टुमारो आई विल पिक अप ऑफिशियल लेटर, इंस्टीट्यूशन में कैसे लेटर लिखा जाता है ये बताएंगे। तो थैंक यू।